Now, yesterday I told you the concept of abstract class. I hope you remember. Okay, so there was one assignment. कल मैंने एक assignment share किया था group के ऊपर, I guess. Am I right? ठीक है, तो according to that assignment तुम लोगों को क्या करना था? देखो, तुम लोगों को मैंने पहले भी लिया था ये, okay, कि you have to create a abstract class called as the instrument. Instrument is the abstract class. You have to create an abstract class as a instrument. Then public abstract void play is the method. This is the empty method. This method is the empty method. अगर एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो क्लास होना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट. अगर एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो क्लास होना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट. तो you have to create 3 more classes like a piano. Okay, piano class क्या करेगा? extends instrument class and उसके बाद override the method public C. Eclipse will give you the method automatically. Just click on the error and add unimplemented method. Look at this. This is called as annotation. This is called as annotation. So I have a method here, play method. तो अभी पियानो का म्यूजिक कैसे होता है? You just type some music here. Okay. अगर हम लोग सुनेंगे तो suppose you can say that 10 ऐसे हम लोग लिख देंगे फिलहाल. This is music for the piano. Clear? This is music for the piano. Okay. Save this. It should be a double quotes. Then new class guitar. Okay, guitar extends instrument. Guitar extends instrument. और यहाँ पे public. Okay, you can just add that method once again. Which method? Abstract method from the abstract class. Method is play. Okay, तो अभी गिटार का म्यूजिक कैसे आएगा? बोलो, कौन बताएगा? Type in the chat box. How to? Okay, what should I write here? गिटार का म्यूजिक कैसे आता है बताओ? Okay, this is guitar. So पियानो हो गया, गिटार हो गया. ऐसे तुम्हें लेना है फ्लूट. ऐसे तुम्हें ऐड करना है फ्लूट. ठीक है, वो तुम लोग ऐड कर दो. Then right click, new class, and here instrument main. देखो पहले कंसेप्ट समझ लो, then I will tell you the real time example of this. हाँ, पहले इसको ठीक से समझ लेना. Okay, instrument main. Instrument main के अंदर you cannot create object of a abstract class, but you can create array. Instrument का array हम लोग कर सकते हैं. ARR is equal to new, यहाँ पे आएगा instrument. ठीक है, यहाँ पे आएगा इंस्ट्रूमेंट. जैसे मैंने लिया कि 5 इंस्ट्रूमेंट के लिए मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया. ओके, नाउ ARR of 0 is equal to new piano. उसके बाद ARR of 1 is equal to new कौन है? गिटार. ARR of 2 is equal to new. इसे एक बार यहाँ पे लिखेंगे हम लोग piano. ARR of 3 is equal to new. ये आएगा फिर से piano. Okay, and ARR of 4 is equal to new. यहाँ पे आएगा गिटार. ओके, अभी क्या किया मैंने? अलग अलग ऑब्जेक्ट बना दिए.
अलग इंडेक्स पे, ठीक है। तो अभी क्या करना है, लेट्स कॉल द डिस्प्ले फंक्शन हियर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले, और यहाँ पे पास कर दो तुम लोग इंस्ट्रूमेंट का एरे, ओके। और यहाँ पे तो यहाँ पे आएगा प्ले मेथड फ्रॉम पियानो इफ I instance of guitar I dot play. Remember this. तो यहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे डिस्प्ले एंड पास द रन दिस एप्लीकेशन। ये देखो यहाँ पे क्या आएगा, एंड देन ये आएगा किस चीज का है, दिस इज फ्रॉम द क्या था, पियानो, ये गिटार, पियानो पियानो गिटार, क्लियर। So this is polymorphic behavior. So you can able to understand, okay, here whenever you have some common behavior, but implementation will vary. So then you can go for the abstract class. Understood everybody? Okay, अगर real time का example का बात करोगे, so you can say that you have a bank account class, loan account, current account, demat account. Every account has the withdrawal and deposit method. Every account has a withdrawal and deposit method. तुम लोग अगर ये प्रिंट नहीं करना है पूरा कोड, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, विदाउट दिस ऑल्सो, विदाउट दिस कोड ऑल्सो आई कैन प्रिंट, इफ यू रिमेम्बर द कंसेप्ट। ओके, यहाँ पे मैं एक काम करूंगा, देखो बिना इस कोड, अगर मैंने ऐसे प्रिंट किया तो चलेगा क्या, बताओ मुझे। इफ आई प्रिंट ओनली आई, टेल मी, अगर सिर्फ आई प्रिंट किया तो चलेगा क्या, ठीक है। यस, यू नीड टू ओवरराइड द टूस्ट्रिंग मेथड, करेक्ट है, यू नीड टू ओवरराइड टूस्ट्रिंग मेथड, तुम लोग ट्राई कर लेना। तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो इससे रिलेटेड मैं तुम्हें कुछ केस स्टडी भी देने वाला हूँ करने के लिए, और हम लोग अभी इसके लिए कुछ रियल टाइम का एग्जाम्पल भी करेंगे। इन शॉर्ट वी आर गोइंग टू क्रिएट वन मिनी प्रोजेक्ट। तो ये पहला प्रोजेक्ट होगा अपना जावा का। आफ्टर द, इसके बाद और एक टॉपिक बताना है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन क्रिएट अ वन मिनी प्रोजेक्ट, ठीक है। बट अभी कुछ लोगों का एग्जाम है, तो आई विल टेल यू द कंसेप्ट ऑफ इंटरफेस, इसी में मॉडिफिकेशन करने वाला हूं मैं, ठीक है। बट आई होप एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या बोला मैंने तुम्हें, कि सपोज एग्जांपल लो, क्लास यहाँ पे लिखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यहाँ पे लिखूंगा मैं फूड, ओके। क्लास का नाम क्या है, फूड है, रिमेम्बर दिस। तो अगर कोई क्लास है जो कि, अगर हमने बोला यहाँ पे बिरयानी, ये एक्सटेंड करेगा किसको, किसको एक्सटेंड करेगा, ये फूड क्लास को, याद रखो। बिरयानी क्लास विल एक्सटेंड विच क्लास, यार फूड क्लास, ओके। और यहाँ पे तुम्हें, ओके, सिमिलरली यू कैन क्रिएट अ क्लास, सपोज पाव भाजी, ये भी एक्सटेंड करेगा किसको, फूड क्लास को। ये भी एक्सटेंड करेगा किसको, फूड क्लास को, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करो, यहाँ पे कॉमन क्या रहेगा बताओ मुझे, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा फ्रॉम दिस क्लास, टेल मी, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा फ्रॉम दिस क्लास, बताओ क्या आएगा कॉमन, करेक्ट, वेरी गुड, यस दैट्स राइट। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड, ओके, रेसिपी। तो रेसिपी जो मेथड है वो कॉमन रहेगा बिरयानी को और पाव भाजी को, सिर्फ बिरयानी का रेसिपी अलग, ओके। यहाँ पे आएगा, जब रेसिपी लिखोगे तो ये बिरयानी का रेसिपी आएगा, जो भी तुम्हें लिखना है वो लिख दो, तुम्हारे स्टाइल का जो बिरयानी होगा उसका, ठीक है। यहाँ पे आएगा पाव भाजी का रेसिपी, हियर यू हैव टू ऐड द रेसिपी ऑफ दी पाव भाजी, ठीक है। तो देखो, तो अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करता है, तो उस क्लास को, ये वाले मेथड को कंपलसरी ओवरराइड करना ही पड़ेगा। अगर कोई क्लास
एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करता है तो उस क्लास को इस मेथड को ओवरराइड करना ही पड़ेगा। अंडरस्टूड? ये क्लियर हुआ सबको? कंपल्सरी ओवरराइड दिस मेथड। अगर किसी ने बोला कि नो आई डोंट वांट टू ओवरराइड, आई डोंट वांट टू ओवरराइड, तो नॉट अलाउड। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा मालूम है? तो तुम्हें यहाँ पे चाइल्ड को भी एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर चाइल्ड भी एब्स्ट्रैक्ट है तो फिर ठीक है, तो मत ओवरराइड करो तो चलेगा। बट अगर चाइल्ड को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो हम लोग चाइल्ड का भी ऑब्जेक्ट नहीं कर पाएंगे। अंडरस्टूड? अगर चाइल्ड क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, इफ अ चाइल्ड क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट then no need to override the method from the parent class, abstract method from the parent class. बट ऐसे अगर कर दिया तो इसको प्रॉब्लम होगा कि इसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो व्हाट इज द यूज ऑफ बिरयानी? व्हाट इज द यूज ऑफ बिरयानी? क्लियर? यू आर गेटिंग माय पॉइंट? अगर तुम्हें चाइल्ड क्लास में चाइल्ड इज इनहेरिटिंग अ पेरेंट क्लास एंड पेरेंट हैज अ मेथड कॉल्ड एज रेसिपी व्हिच इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इट इज कंपल्सरी टू ओवरराइड द मेथड, but child don't want to override the method, then make a child also abstract. but child abstract कर दिया तो बिरयानी का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, तो दिस इज रॉन्ग। तो फिर क्या करेंगे? तो अगर तुमने बोला कि सर ऐसा कौन सा क्लास है, कैन यू टेल मी ऐसा कौन सा क्लास है कि जो फूड का चाइल्ड होगा बट उसमें रेसिपी की जरूरत नहीं है? बताओ। टेल मी द क्लास विच इज चाइल्ड ऑफ द फूड क्लास बट नो नीड टू ओवरराइड द मेथड ऑफ द मेथड रेसिपी मेथड। टेल मी। यस, वेरी गुड नम्रता, वेरी गुड। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास वेज फूड, ओके। वेज फूड ऐसा क्लास है कि जिसको भी मीनिंग नहीं है, वो सिर्फ एक कैटेगरी है, एक्सटेंड्स फूड, तो नो नीड टू ओवरराइड अ मेथड। तो इसके अंदर अपना खुद का कुछ और मेथड रहेगा दूसरा, ओके। तो इसके साथ उसका कुछ मेथड रहेगा, जैसे हम लोग कुछ तो भी ले लो यहाँ पे, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वेजिटेबल्स, ठीक है। टेम्पररी एक मेथड ले लो, क्योंकि वेज करने वाले तो वेजिटेबल्स आने ही चाहिए। क्लियर? ऐसे हम लोग कंसिडर करेंगे, अगर वेज फूड रहेगा तो वेजिटेबल्स आने ही चाहिए, तो ये मैंडेटरी रहेगा। क्लियर? वेजिटेबल में बी वेरी क्लियर, समझ में आ रही है? बट यहाँ पे रेसिपी की लेने की जरूरत नहीं है। सबको क्लियर हुआ कि नहीं? नाउ इफ योर बिरयानी इज अ वेज बिरयानी, यू कैन से दैट वेज फूड, और इसको दो मेथड लगेंगे अभी, एक लगेगा रेसिपी और रेसिपी के लिए लगने वाले वेजिटेबल्स, रेसिपी को लगने वाले वेजिटेबल्स। तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे कंपल्सरी रेसिपी भी आएगा क्या? यस, ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि बिरयानी का पेरेंट वेज फूड है, बट वेज फूड का पेरेंट कौन है? फूड है। सो इट इज मैंडेटरी टू ओवरराइड बोथ द मेथड्स इन द बिरयानी। It is mandatory to override both the methods in a biryani. Everybody clear? Okay, understood now. Please remember this. Please remember this. इसका एक फोटो ग्रुप में डालता हूँ मेरे को। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर चाइल्ड भी अगर एब्स्ट्रैक्ट होगा तो नो नीड टू ओवरराइड द पेरेंट मेथड, और चाइल्ड का जो चाइल्ड होगा कि वो अगर इनहेरिट कर रहा है इस चाइल्ड को, तो दिस चाइल्ड हैज टू ओवरराइड बोथ द मेथड्स। ठीक है? तो आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो अभी तक क्या क्या बताया? चलो कौन कौन टाइप करेगा समरी? टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट क्लास? टाइप द पॉइंट्स जो तुम लोग को याद है, उसको लिख कर भी रखो फास्ट। जिसको जो पॉइंट याद आएगा टाइप करो, तो जिसको याद नहीं आएगा उसने पढ़ो। फास्ट चला टाइप करा लवकर, कोणते कोणते पॉइंट आठवत आहे ते सांगा। कंप्लीट सेंटेन्स, गिव्ह मी अ कंप्लीट सेंटेन्स। कोणाचा ऑब्जेक्ट, तुमचा की माझा? टेल मी। If method is abstract, then class must be abstract. Okay, ठीक है। If method is abstract, then class must be abstract. That's right, Pratiksha. Of no object of abstract class. We can't create the object of abstract class. Okay, 2 points are correct. Third point. It has no method. It cannot be instantiated. It has abstract and non-abstract method. Okay. So in short, the abstract class has abstract and non-abstract method. Okay. Third point. Contains abstract method with no body. Abstract method मतलब no body, right? We cannot create an object of abstract class, but we can create an array of that. Okay.
Abstract class has abstract as well as non-abstract method. Okay, correct. Class extending abstract class must override its method compulsory. Very good, Vaishnavi. Correct. 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 Very good. Abstract methods are empty method. Okay. Abstract methods are empty method. Abstract methods are empty method. Okay. If child class does not override the method, then make a child also abstract. If child class does not override the method, then make a child also abstract. Understood? Make a child also abstract. Clear? ठीक है? ठीक है. Please remember these points. Okay? We cannot instantiate an abstract class because it is abstract. We have to override in class. Okay, we can use the abstract when the behavior. Okay, that's right. Now you got a point, right? ठीक है. तो ये इंटरफेस क्या होता है? देखो, इंटरफेस क्या होता है. मैं इसी एग्जांपल को मॉडिफाई कर रहा हूँ, शेप वाले को. अगर तुम्हारे पास दोनों मेथड अगर एब्स्ट्रैक्ट है, किसी ने बोला सर मुझे थैंक यू के लिए थैंक यू नहीं प्रिंट करना हर टाइम, थैंक यू इज जस्ट अ मेथड नेम, बट किसी को बोलना है थैंक यू, किसी को बोलना है ओके क्या वेलकम, किसी को लिखना है कम अगेन, किसी को लिखना है यहाँ पे कुछ अलग गेट वेल सून, कुछ अलग मैसेज है सपोज एग्जांपल. तो यहाँ पे मैसेज में वेरी, ओके, बट थैंक यू इज द मेन फ्रेज बिहाइंड दिस. की थैंक यू एक वर्ड है बट उसके अंदर का सेंटेंस अलग अलग होगा. क्लियर? होता है ना, हर एक का अलग अलग तरीका होता है. ओके, थैंक यू बोलने का. क्लियर? तो यू कैन चेंज दैट सेंटेंस. यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, हर एक का अलग अलग तरीका होता है थैंक यू बोलने का. क्लियर? तो यू कैन चेंज दैट सेंटेंस. तो अगर दोनों मेथड ही एब्स्ट्रैक्ट है, दोनों मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, और एक रूल याद रखो, एक रूल बताना भूल गया मैं, एक याद रखो कि ओवरराइडिंग जब करते हैं ना, तब ये अगर पब्लिक है तो चाइल्ड क्लास के अंदर इसको हमेशा पब्लिक रखो. अगर तुमने बोला कि मैंने इसको डिफॉल्ट कर दिया तो नॉट अलाउड. इसका मतलब ये पॉइंट याद रखो, इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये. पब्लिक, उसके बाद आता है उससे छोटा है प्रोटेक्टेड है, और सबसे छोटा कौन है? यहाँ पे होता है प्राइवेट. प्राइवेट. तो एक रूल याद रखना है कि अगर पेरेंट क्लास में पब्लिक है तो चाइल्ड क्लास में सिर्फ पब्लिक ही चलेगा. रिमेंबर दिस. इफ अ क्लास ए हैज अ मेथड कॉल्ड एज पब्लिक एक्स, ओके, तो जब अगर ओवरराइड करोगे बी के अंदर, अगर ओवरराइड करोगे इसको, अगर ओवरराइड करोगे यहाँ पे तो पब्लिक ही चाहिए. ओके, अगर ऊपर ये मेथड, हेलो, एम आई ऑडिबल एवरीबॉडी? ठीक है. हाँ, तो मैंने क्या बोला कि अगर बेस क्लास में कोई मेथड अगर पब्लिक है तो चाइल्ड क्लास में मेथड पब्लिक ही रहेगा. अगर ऊपर डिफॉल्ट है तो यहाँ पे पब्लिक वैलिड है, डिफॉल्ट भी वैलिड है. यहाँ पे अगर प्रोटेक्टेड है तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड इज वैलिड एंड पब्लिक इज वैलिड. इसका मतलब क्या होता है कि अगर पेरेंट के पास कोई मेथड प्राइवेट सॉरी पब्लिक है तो चाइल्ड में सिर्फ पब्लिक ही रहेगा. अगर ऊपर प्रोटेक्टेड है तो चाइल्ड के पास प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक दो ऑप्शन रहेंगे. अगर ऊपर वाले क्लास में डिफॉल्ट है तो चाइल्ड क्लास में डिफॉल्ट प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक रहेगा. यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी? अगर पेरेंट के पास पब्लिक है तो नीचे पब्लिक ही रहेगा मेथड, प्रोटेक्टेड है तो दो ऑप्शन है, डिफॉल्ट है तो तीन ऑप्शन है. अगर प्राइवेट होगा पेरेंट के पास तो चाइल्ड में क्या आएगा? पेरेंट क्लास में अगर प्राइवेट होगा तो चाइल्ड क्लास के अंदर क्या आएगा? बोलो, कितने ऑप्शंस है? इफ अ पेरेंट क्लास हैज प्राइवेट मेथड देन चाइल्ड के पास कितने ऑप्शन रहेंगे? ओके, वेरी गुड, 3 ऑप्शन. ठीक है. ओके सौरभ, 4 ऑप्शन. गुड. सो ऑल 4 ऑप्शंस आर रॉन्ग. क्लियर? उन प्राइवेट कहीं पे भी एक्सेस नहीं होता है. क्लियर? यू कैनॉट एक्सेस प्राइवेट आउटसाइड द क्लास.
You cannot access private outside the class. There is no option actually. Here, 0 option, 3 option, 4 option. All are the wrong answers. So if method is a private, you cannot override the method. Clear? ठीक है, रिमेम्बर दिस. हाँ, नाउ तो मैं कहां पे था? इंटरफेस के बारे में बोल रहा था. लिसन, तो इंटरफेस क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास दोनों ही मेथड एम्प्टी है तो व्हाई यू आर क्रिएटिंग द एब्स्ट्रैक्ट क्लास. उसके डिसएडवांटेज भी है, और प्राइवेट पब्लिक भी मत लिखो, एब्स्ट्रैक्ट भी मत लिखो, सिर्फ इसका नाम चेंज कर दो तुम यहाँ पे इंटरफेस. तो अगर कोई इंटरफेस होता है तो बाय डिफॉल्ट method is public and abstract. By default method is public and abstract. Yes, maybe there is some difficulty in a network, or maybe screen is lagging, I know that, but just adjust for some time. Okay, listen, अगर parent class में interface मतलब क्या? By default all the methods are public and abstract. What is interface? मैं यहाँ पे लिखता हूँ. Interface shape, there are two methods, find area and thank you. Both are by default public and abstract. अगर इंटरफेस होता है तो मेथड बाय डिफॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट ही होते. देयर इज नो मेथड विथ अ बॉडी. इथपर्यंत कळलं सगळ्यांना? देयर इज नो मेथड विथ द बॉडी. ओके, नाउ your child class will use the implements keyword. Which keyword? Implements keyword. Child class will use which keyword here? Implements keyword. Remember, कौन सा कीवर्ड आएगा यहाँ पे? Implements keyword. एंड अभी देखो यहाँ पे एरर आ गया क्योंकि ये डिफॉल्ट कर दिया तुम लोगों ने, क्योंकि इंटरफेस का मेथड बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, तो इसको क्या करोगे? पब्लिक ही करोगे तभी चलेगा ये. ठीक है, ये हमेशा क्या रहेगा? पब्लिक ही रहेगा. रिमेम्बर दिस. पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट प्ले, सॉरी प्ले नहीं था, कुछ गड़बड़ किया मैंने. एक मिनट. ओके ओके, ठीक है, इसको चेंज कर दे. चलो, नहीं हम लोग शेप में थे ना. हाँ, यहाँ पे थे, तो पियानो में आके यहाँ पे इंप्लीमेंट्स करना है शेप को, और ये आएगा मेथड यहाँ पे. क्या हुआ? सॉरी, एक मिनट. शेप ले लिया तो सर्कल चाहिए ना. हाँ, सर्कल में आके यहाँ पे लिखो इंप्लीमेंट्स शेप एंड कंपल्सरी ओवरराइड बोथ द मेथड्स. एरर पे क्लिक करो, और मैन्युअली भी टाइप कर सकते हो तुम लोग. ये देखो, दिस इज द टेस्ट मेथड, दिस इज थैंक यू मेथड. This is a test method, this is a thank you method. Clear? This is a test method, this is a thank you method. ठीक है, तो ये हुआ टेस्ट मेथड, ये हुआ थैंक यू मेथड. तो टेस्ट मेथड में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? लुक एट दिस. ये वाला टेस्ट मेथड है. ये कौन सा मेथड है? थैंक यू मेथड है. ओके, थैंक यू में यहाँ पे तुम्हें जो मैसेज लिखना है लिख दो. ओके, उसके बाद अभी हम लोग आएंगे, कौन सा क्लास था वो? ट्रायंगल. यहाँ पे भी आके यूज होगा वर्ड इंक्रीमेंट्स शेप एंड ओवरराइड बोथ द मेथड्स हियर. ओवरराइड बोथ द मेथड्स हियर. ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा मैंने? ऑल द बेस्ट. सो डू यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इंटरफेस? एवरीबडी, बाकी सब कुछ सेम है. यू कैनॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट. ओके, तो सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे लिखता हूं मैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का. कोई भी इंटरव्यू में तुम्हें ये इंटरफेस डिफरेंस लगेगा. ओके, रिमेम्बर दिस. ओके,
So everybody, please remember this is a very important difference. Okay, this is very important difference. अगर एक तुम्हें लिखना है तो ये भी लिख सकते हो तुम लोग. ठीक है, सगळ्यांना कळलं का हे डिफरन्स? प्लीज रिप्लाय. सगळ्यांना हे डिफरन्स समजलेत का? प्लीज रिप्लाय एव्हरीवन.